میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے شوہر فریدے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے سسر کی تھوڑی سی زمین تھی، مگر سیم نے اس کو بیکار کر دیا تھا۔ 2-4 بورے گندم اترتی، یہ پورے سال کے لیے ناکافی تھی۔ تبھی چاچا جی نے پڑوسی محافظ بھائی سے ذکر کیا۔ وہ بولا، حسن چاچا، تمہاری زمین سیم زدہ صحیح، کچھ نہ کچھ فصل تو گھر اٹھا لاتے ہو۔ کاشتکار محنتی ہو تو کسی حال بھوکا نہیں مرتا۔ 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی پیداوار سے میسر آ جاتی ہے۔ سیم والی زمین پر سفیدے کے درخت لگاؤ۔ جانتے ہو کہ یہ سفیدہ کتنا مہنگا بکتا ہے؟ چچا بولے، یہ بات کی بات ہے، ہم کو تو آج کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ گھر میں تیل صابن کپڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف روکھی سوکھی سے پیٹ نہیں بھرتا بھتیجے۔ تم میرے بیٹے فریدے کو کام کے لیے باہر بھجوا دو۔ حسن چاچا، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تیرا لڑکا اتنا سخت جان نہیں کہ پردیس کی مشقت سہ سکے۔ اچھی طرح سوچ لو، تھوڑی بہت تمہاری زمین جو آباد ہے، کہیں یہ بھی بنجر نہ ہو جائے۔ اکیلے تم کھیتی باڑی نہیں سنبھال سکتے۔ بھتیجے، تم میرے بارے میں اور زیادہ نہ سوچو، اپنے بھائی سے فریدے کے ویزے کے لیے کہو۔ چاچا جی نے اپنے پڑوسی کو جواب دیا۔ حسن اتفاق کہ انہی دنوں محافظ کا چھوٹا بھائی جو 5 برس سے سعودیہ میں کما رہا تھا، چھٹی پر گھر آیا تو چاچا جی اس کے سر ہو گئے، اور یوں وہ 2 ماہ بعد فریدے کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ میری اپنے خاوند فریدے سے بہت بنتی تھی، ہماری آپس میں محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ گھر پر ہوتا تو میرا پلہ بھاری رہتا تھا، مگر جب سے وہ گیا اس کی ماں بلا وجہ مجھ سے الجھنے لگی۔ اب تو وہ بیٹے کی غیر موجودگی میں مجھ پر شیر ہو گئی تھی۔ میں کسی سے فریاد بھی نہ کر سکتی تھی، چپ رہتی تو چاچی کی کڑوی کسیلی باتیں کلیجہ کھاتی، بولتی تھی تو نند اور دیور کے ہاتھوں پٹ جانے کی نوبت آ جاتی۔ ساس ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی بات پہ ان سے پٹوا دیتی۔ میکا 10 کوس دور تھا، ماں باپ بھی داد رسی کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ رو دھو کر چپ ہو جاتی۔ فریدے کے جانے کے بعد میری زندگی تو جہنم بن گئی تھی۔ میرے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو چھوڑ کر میکے جا بیٹھنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ چاچی روز ہی کہتی، جاتی ہے تو جا، مگر بچے نہ لے جائے گی، یہ ہمارے ہیں، یاد رکھنا، ان کو لے کر گھر سے نکلی تو میں تیرے بھائی کے بچے ندی میں پھینکوا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ چاچی بڑی فسادن ہے، اگر بچے میکے لے گئی تو یہ ضرور کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے گی کہ میرے ماں باپ کا ناک میں دم آ جائے گا۔ میرا بھائی رفیق غصے کا بہت تیز تھا، اس کو جھگڑے میں الجھانے کا مطلب تو محض خون خرابہ ہی تھا۔ ایسے حالات میں میکے نہ جانے میں ہی عافیت تھی، بس دن رات کے اس جہنم کو جھیلنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک روز صبح اٹھتے ہی اس روز چاچی نے پھر سے جھک جھک شروع کر دی۔ ادھر میرا دل اپنے شوہر کی جدائی سے تنگ تھا، ساری رات رو کر گزارتی، سارے گھر کا کام، جانوروں کی دیکھ بھال، فریدے کے گھر والوں کی خدمت، کھیت کھلیان کا کام کاج، سبھی بوجھ ساس نے مجھ پر ڈال دیا تھا۔ کسی انسان کو ستانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دل کی گھٹن نے مجھ کو ادمویا کر ڈالا تھا۔ فریدے کو گئے پورے 2 برس بیت چکے تھے، اور اب کی عید پر جب پڑوسی محافظ کا بھائی گھر آیا تو پہلی بار میرے جیون ساتھی نے اس کے ہاتھ کچھ سامان بھجوایا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے گھڑی اور فون، باپ کے لیے گرم کمبل، اور ہم سب گھر کی عورتوں کے لیے ریشمی خوبصورت جوڑے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چاچی انصاف سے کام لیتی اور ہر کسی کے جوڑے اس کو دیتی، مگر اس نے میرے نام کے جوڑے بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے کہ تم کو فریدہ اور بھیج دے گا۔ یہ جوڑے میں اپنی چھوٹی بیٹی شمیرہ کے جہیز کے لیے رکھ دیتی ہوں، اسے بھی تو بیانہ ہے۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اس بٹوارے کو دیکھتی رہ گئی۔ پورا بھرا بھرایا سوٹ کیس بھیجا تھا میرے سرتاج نے۔ بچوں کے 2 جوڑے اور 2 عدد کھلونے ہی میرے ہاتھ میں چاچی نے تھمائے تھے۔ تبھی فریدے کو یاد کر کے آنسو نکل آئے۔ کیا اسی لیے میرا خاوند شدید گرمی میں پردیس کی مشقتیں سہتا ہے اور میں اس کی جدائی کی آگ میں سلگ رہی ہوں؟ جب سے وہ گیا تھا کسی نے ایک ڈھیلا میرے ہاتھ پر نہیں رکھا تھا، مفت کی وصیت ہی جھیل رہی تھی۔ وہ رات بھی رو رو کر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو میرا جی اٹھنے کو نہ چاہ رہا تھا، منہ لپیٹے پڑی رہی۔ سورج سر پر آ گیا، جانور چارہ اور پانی کے لیے ڈگرانے لگے۔ تبھی چاچی نے واویلا شروع کر دیا۔ نند اور دیور نے بھی خوب زبان چلائی۔ چچی تھیں کہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، آخر کتنا برداشت کرتی؟ میں بھی تو ایک انسان تھی، تھک ہار کر چچی کو جواب دے ہی دیا۔ چچی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، نوکر تو نہیں ہوں میں،
आज अपनी बेटी को कहो वो कर दे सब काम। बस इतना कहना था कि चच्ची आग बगोला हो गई। उसी वक्त मुझे बालों से पकड़कर कमरे में ले गई और नंद और देवर से खूब पिटाई करवाई। जब चाची का शोरो होगा किसी तरह कम ना हुआ तो मैंने उस रोज मर जाने की ठान ली। कुछ देर चादर में मुंह लपेटे रोती रही, फिर नंद से चारा काटने का कहकर खेत में निकल गई और नदी के किनारे जा बैठी। देर तक खुद को पानी में गिराने पर आमादा करती रही, मगर ना जाने बच्चों की मोहब्बत थी या अपनी बुज़दिली कि नदी के यख पानी में छलांग लगाने की हिम्मत ना हुई। घंटा भर किनारे बैठी रही, आंसू बहाती रही। मैं तो अपने ख्यालों की दुनिया में थी। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने नज़र उठाकर देखा, सामने एक नहीं दो आदमी खड़े थे। कुछ नहीं हुआ है, मगर तुम कौन हो? मैं शर्फू और ये बग्गा है। वो सामने वाले खेत हमारे हैं। उसने सड़क पार इशारा किया। तुम सकीना हो ना? हाँ, मगर तुमको कैसे मालूम? हम हसन चाचा के पड़ोसी हैं। हमको तो ये भी मालूम है कि हसन चाचा की घरवाली अपनी बहू पर बहुत जुल्म करती है। हाँ, वो मुझ पर बहुत जुल्म करती है। आज मरने के इरादे से ही निकली थी। ये कहकर मैं रोने लगी। तब शर्फू ने कहा, तो मेके क्यों नहीं चली जाती? मेका दूर है, किसके साथ जाऊं? पैदल तो नहीं जा सकती, हम पहुंचा देते हैं। तेरा भाई रफीका तो हमारा यार है। भाई का नाम सुनकर उठ खड़ी हुई। क्या तुम मुझे उसके पास पहुंचा दोगे? मैं तो इस घर और जिंदगी दोनों से तंग आई हुई थी। उसके साथ चल पड़ी। सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल मौजूद थी। शरफुद्दीन उस पर बैठ गया। कहने लगा, आओ सकीना, मेरे पीछे बैठ जाओ, बग्गा पैदल चला आएगा। यार तू पैदल आ जाना बस्ती। उसने बग्गे को मुखातिब किया। मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। तभी उसने सवारी को एड़ लगा दी। मुझे वो मेके ले जाने की बजाय अपने ठिकाने पर ले गया। तब एहसास हुआ कि उस पर एतमाद करके कितनी बड़ी गलती की है। एक मुसीबत से निकली और दूसरी में फंस चुकी थी। मेरे हालात तो पहले ही खराब थे और इस कमबख्त शरफू ने मुझ दुखियारी को पाबंदो मजबूर करके रही सही कसर पूरी कर दी। 15 रोज तक मेरी तलाश होती रही। चाची ने मेरे मेके कहलवा भेजा कि सकीना अपने किसी यार के साथ भाग गई है। उस पर मेरा भाई खंजर जेब में रखकर मेरी तलाश में घर से निकल गया कि जहां मिल गई वो मेरा खात्मा कर देगा। 15 दिन बाद शरफू के साथी बग्गू ने किसी खुफिया जरिए से हसन चाचा को खबर करा दी कि तेरी बहू शरफुद्दीन खोड़े की कैद में है और उसकी रिहाई के 20,000 मांगता है। उन दिनों 20,000 एक बड़ी रकम थी। बूढ़ा ससुर रोता हुआ मेरे भाई के पास आया और बताया कि बदमाश शरफुद्दीन खोड़े ने हमारी बहू को तावान के बदले अगवा कर लिया है और ये खतीर रकम मांग रहा है। रफीक भाई ने कहा, चाचा तू फिक्र ना कर, मैं हर सूरत में अपनी बहन की इज्जत का मोल देकर तेरी बहू को घर पहुंचा दूंगा। तू इस बात की किसी को कानो कान खबर ना होने देना और मैं भी तेरी बदनामी ना होने दूंगा, क्योंकि हमारी इज्जत सांझी है। उसी रोज मेरे भाई ने मंडी में जाकर अपने तमाम माल मवेशी बेच दिए और रकम मेरे ससुर को ला कर दी। कहने लगा, अभी 2,000 कम है, ये तू इसमें डालकर रकम पूरी कर लेना और रुपया अपने बदमाश हमसाये को पहुंचाकर बहू घर ले आना। भाई खुद शरफू के सामने आना नहीं चाहता था कि उसका खून खोल रहा था। उसने चाचा हसन की इज्जत बचाने को खुद को काबू में रखा हुआ था। बग्गू की मार्फत रकम शरफू को पहुंच गई और बग्गू ही की मार्फत मैं अपने घर पहुंच गई। औरत की अमानत उसकी इज्जत होती है और उसकी इज्जत भी उजली चादर जैसी होती है। मैं फरीदे की अमानत थी। चाचा घुटा घुटा रहने लगा, क्योंकि अगर फरीदे को मालूम हो जाता कि उसके पीछे क्या किस्सा हुआ है तो चाची और चाचा को उसका जवाब दे होना पड़ता। बाप तो इन्हीं सोचों में गुम था, मगर फरीदे की माँ की अक्ल वाकई उसकी गुद्दी में पड़ी थी। तभी तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बाज ना आई और मारे तानों के मेरा कलेजा छलनी करने लगी। मुझसे कहती कि ऐसे कोई किसी को उठाकर नहीं ले जाता, जरूर तूने पहले से उस बदमाश के साथ चक्कर चला रखा होगा। कमबख्त, क्या मुंह दिखाएगी अपने शोहर को? अपने साथ हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इतने दिन उसकी कैद में रही है, क्या जानती नहीं कि औरत की चुनरी में दाग लग जाए तो वो किसी मोल की नहीं रहती। फिर भी तुझ जैसी को घर ला बसाने के लिए 20,000 रुपए भरे हैं तेरे ससुर ने। उस वक्त तक मुझे ये मालूम ना था कि तवान की रकम किसने भरी है। मैं यही समझ रही थी कि चाचा ने ही भरी है और तभी सास का बलकना बजा है।
मगर चाची बड़ी फितरत इज़ा देने वाली औरत थी। उठते बैठते ऐसी बातें सुनाती कि मेरा सांस बंद होने लगता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था, मगर मैं भागी भी तो उनके जुल्मों की वजह से थी। अब जब घर आई हूँ तो फिर से वही ताने सुनने को मिले। मेरा शोहर तो परदेश जाकर मुझे भूल ही गया था। अब तो सचमुच में खुदकुशी करने को जी चाहता था, मगर फिर बच्चों की तरफ देखती तो सब्र कर जाती। आखिरकार मैंने एक पड़ोसन की मिन्नत की कि मेरे मेके जाकर माँ को संदेशा दो कि जब तक फरीद वापस नहीं आ जाता मुझे अपने पास बुला लो, वरना चाची मेरा कलेजा खा जाएगी। खुदा का शुक्र है कि संदेशा मिलते ही माँ मुझे लेने आ गई। माँ के इसरार पर सास ने उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी, मगर बच्चे साथ ना ले जाने का कहा। ये फरीदे की अमानत हैं, उसके बिना पूछे तुम इनको नहीं ले जा सकती। मैंने सब्र किया और बच्चे सास के पास छोड़कर माँ के साथ चली आई। मेके आकर सास के तानों से तो निजात मिल गई, मगर बच्चों की याद तड़पाती थी। उधर रफीके का खौफ माँ को परेशान रखता था, कि जिसको मेरे शरफों की कैद में इतने दिन रहने का बहुत ज़्यादा गम था। वो जब भी मुझे देखता तो उसकी आंखों में खून खोलने लगता। उसको ये भी मालूम ना था कि चाचा ने शरफू को पूरे 20,000 अदा ना किए थे, बल्कि जो 2,000 रुपए कम थे उसने बग्गू से कहकर उधार रखवा लिए थे कि चंद रोज बाद अदा हो जाएंगे। बग्गू जामिन बन गया तो शरफू ने मुझे 18,000 लेकर उसके हवाले कर दिया कि 2 माह के अंदर अंदर ये रकम हसन चाचा से ला देना, वरना ये रकम मैं चुगनी तुझ से ही वसूल कर लूँगा। अब बग्गू बार बार दर पर आकर मेरे ससुर से 2,000 का मुतालबा करने लगा। बिलाखिर चाचा एक रोज़ मेरे भाई रफ़ीक के पास जा पहुंचा और बताया कि 2,000 वो और मांग रहे हैं, मेरे पास रकम नहीं है, तुम ये भी अदा कर दो ताकि वो बदमाश मेरा पीछा छोड़ दें। ये बात सुनकर मेरे भाई का जवान खून जोश मारने लगा और वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, देख चाचा, मैंने तेरी सफ़ेद गाड़ी की लाज रखी और तेरे बेटे की तकलीफ का एहसास किया। वो तुम लोगों की खातिर परदेश में मुशक्क़त की चक्की पीस रहा है। क्या उसकी कमाई से 2,000 भी उसकी बीवी की रिहाई के लिए नहीं दे सकते? क्या उसकी बीवी का कोई हक नहीं है उसकी कमाई पर? चाचा बोले, वो तो तेरी बात ठीक है, मगर सकीना का शौहर जो भी कमा कर भेजता है वो सारे पैसे उसकी माँ रख लेती है और मुझे बामुश्किल से घर का खर्चा देती है। उस पर मेरा भाई और गुस्से में आ गया और कहा कि फिर अफसोस है ऐसी रिश्तेदारी पर। मैंने जिस बदले की आग से पहले खुद को रोके रखा है वो मैं अब कर गुजरूंगा। मुझे चाहिए था कि 20,000 तवान भरने की बजाय मैं शरफों को मौत के घाट उतार देता, मगर मैंने सिर्फ तेरी सफ़ेद पगड़ी का लिहाज किया, दिल पर पत्थर रख लिया। गैरत का जनाजा निकला और मैं रो भी ना सका। आज मुझको तेरी असलियत पता चली है। मेरे पास कोई 2,000 रुपए नहीं है। कहलवा दे शरफू से कि मैं अब खुद उससे निपट लूँगा। उसने इरादा कर लिया कि अब उन बदमाशों को मज़ा चखाने का वक्त आ गया है, लेकिन अब वो मुझे भी खूनखार निगाहों से देखने लगा था। माँ बाप ने बेटे के बिगड़े तेवर को भांप लिया तो मेरी ज़िंदगी के बारे में खाइफ रहने लगे। मुझे घर में अकेला ना छोड़ते और हर वक्त मेरी हिफाजत पर मामूर रहते थे। उनको खतरा था कि मेरा भाई गैरत के नाम पर कुछ बुरा करने वाला है। रात को भी मेरी चारपाई माँ और बाप की चारपाई के दरमियान बिछाई जाती थी। एक रोज़ सुबह हुई तो रफ़ीक भाई ने अम्मा को बताया कि तेरी छोटी बेटी आसिया के घर से उसका देवर ये संदेशा दे गया कि आसिया कल रात तनूर पर रोटियां लगाते हुए जल गई है। आज उसको शहर के अस्पताल ले जाना है, इसलिए उन्होंने तुम्हें और अब्बा को बुलवाया है। बहन की हालत ठीक नहीं है। बेटी की हालत की खराबी का सुनकर माँ परेशान हो गई और अब्बा से कहा कि इसी वक्त आसिया के पास ले चलो। अब्बा भी बौखला गए और वो दोनों मुझे मजीदा के हवाले करके बेटी के ससुराल दूसरे गांव रवाना हो गए। मजीदा अम्मा की खाला जात थी जो बराबर वाले मकान में रहती थी और रफ़ीक भाई की शादी उसकी बेटी जरीना से होने वाली थी। भाई अपनी मंगेतर को बहुत चाहता था। वो भी भाई की एक झलक देखने की लालच में अम्मा के काम में हाथ बटाने को रोज़ ही हमारे घर आया करती थी। दोपहर तक मजीदा मेरे पास रही। बाद में जरीना आ गई तो वो घर चली गई। तभी मैंने जरीना से कहा कि आज रात तू मेरे पास यहाँ सो जाना, क्योंकि रात को मुझे तेरे घर नींद ना आएगी। वो बोली, ये बात अम्मा मानेगी नहीं, क्योंकि खाला और खालू घर नहीं हैं। या तो अम्मा खुद तेरे पास सोएगी या तुझे अपने घर साथ ले आएगी। जब मैंने बहुत इसरार किया तो उसने कहा, अच्छा मैं माँ से बात करती हूँ। जाने कैसे उसने माँ को मना लिया और वो रात को मेरे पास सोने आ गई। भाई उस वक्त घर पर ना था।
जब वो सोने आई थी, मैंने उसको अपने कमरे में अपनी चारपाई पर सुला दिया और कहा कि ज़रा होशियार रहना। मैं अम्मा के तख्त पोश पर ईशा की नमाज पढ़कर बाद में आ जाऊंगी। हमने साथ खाना खाया और फिर वो सोने को लेट गई। मैं नमाज पढ़कर वहीं लेट गई। नींद आज भी मुझसे कोसों दूर थी, मगर बेखबर जरीना मेरी चारपाई पर लेटते ही सो गई थी। खेतों में रात को मच्छर बहुत होते हैं, लिहाजा रोशनदान से ये कमरे में भी आ जाते हैं। तभी हम लोग रात को सर से पांव तक चादर लपेट कर सोते हैं। वो भी चादर लपेट कर सोई हुई थी। मेरी बड़ी बहन आसिया फुफ्फो की बहू थी और उसका घर 8 कोस के फासले पर दूसरे गांव में था। अब्बा को आसिया का शोहर उनके घर के दरवाजे पर ही मिल गया। खुशबाश नजर आ रहा था। क्या आसिया ठीक है? उन्होंने उसको देखते ही सवाल किया। हाँ ठीक है। क्यों, क्या हुआ है? और आप मामू जान इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने हैरत से पूछा। रफीक ने बताया कि वो जल गई है और उसकी हालत ठीक नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, आप खुद अंदर चलकर देख लें। अम्मा और अब्बा धड़कते दिल के साथ घर में गए। सामने उनकी बेटी तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। उन्होंने पहले तो इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन आसिया को सही सलामत देखकर उनका माथा ठिनक गया कि आखिर रफीक को उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अब्बा ने अपने दामाद से कहा, ठीक है, हमें अभी वापस जाना होगा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। उधर वो ये बातें कर रहे थे और इधर मेरा प्यारा अम्मा जाया मुझे ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो जो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, सो ऐसा ही हो गया। रात भर अम्मा अब्बा दोनों मेरी फिक्र से ना सो सके थे। सुबह होने से पहले रात के चौथे पहर उन्होंने लौटने की तैयारी कर ली। हाँपते कांपते वो सुबह 7 बजे घर आ गए। दरवाजे से सहन में आए तो देखा रफीक बरामदे में बैठा आग ताप रहा है और घर में सन्नाटा है। बाप ने पूछा, तू अभी तक घर में बैठा है, काम पर क्यों नहीं गया? तभी अम्मा बोली, तेरी बहन कहाँ है? वो उधर है। उसने इशारा किया, फिर खुद ही गोया हुआ। ख़त्म कर दिया है मैंने उसको ये ख्याल सुहान रूह था मेरे लिए कि वो इतने दिन एक गैर के कब्जे में रहकर भी जिंदा है, इसलिए ख़त्म कर दिया है आज उसको। माँ ने सिसकी ली तो बाप ने होंठ भींच कर कहा, क्या यही बात बताने के लिए घर में रुका हुआ था तू? अम्मा तो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठकर बैन करने लगी और अब्बा ने जब्त में जकड़ी मध्यम आवाज़ में पूछा, अब तू कहाँ जा रहा है बदनसीब? थाने जा रहा हूँ अब्बा। और कहाँ जाना है? उसने ठंडी सांस ली और घर से निकल गया। अब्बा मेरे कमरे की तरफ गया जहाँ चारपाई पर खून में लथपथ जिस लड़की की लाश पड़ी थी उसके मुंह पर चादर थी। उन्होंने चादर हटाई। चेहरे पर चादर के ऊपर से कुल्हाड़ी लगी थी, लेकिन सूरत पहचानी जा सकती थी। ये मैं ना थी, मजीदा की बेटी जरीना थी, जिसकी सूरत को भाई वार करते वक्त अंधेरे में पहचान ना सका था। उसने रात के आखिरी पहर जब सोई हुई जरीना पर वार किए तो उसके चेहरे से चादर हटाने की भी जहमत गवारा ना की। जब मैंने जरीना की चीख सुनी तो रात के अंधेरे में कमरे से बाहर ही ना आई। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से ना हक जरीना मारी गई, जो मेरे भाई की मंगेतर थी। जब रफीक को उसके अपने हाथों कत्ल होने का इल्म हुआ होगा तो हवालात में उस पर क्या बीती होगी। वो तड़प उठा, मगर अब क्या फ़ायदा। सच है, जब इंसान पर खून सवार होता है तो अक्ल के सारे चिराग बुझ जाते हैं। मैं इस गुमान में बेगुनाह जरीना को मक्तल में लिटा कर आई थी कि भाई ने अगर उस पर वार किया तो पहले उसकी सूरत देखेगा, तब जरीना के कत्ल से बाज रहेगा। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। कत्ल के बाद भाई पक्का पक्का जेल का होकर रह गया, क्योंकि अदालत ने उसे उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी थी। और मेरा शोहर फरीद भी पक्का पक्का वापस घर आ गया और मैं अपने घर वापस चली गई। घर आने के बाद मेरी सास ने खूब शोर मचाया और अपने बेटे से कहा, अपनी बीवी को तलाक दो, अब ये तुम्हारे लायक नहीं रही है। मगर फरीद मुझसे प्यार करने के साथ साथ मुझ पे एतबार भी बहुत करते थे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल पाक हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हारे जाने से पहले थी। फरीदे ने सारा वाक़या सुनने के बाद मुझे तलाक ना देने का फ़ैसला किया और बाकी की सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारने का फ़ैसला किया और माँ को भी बड़े प्यार से मना दिया। काश मेरे शोहर की तरह मेरे ससुराल वाले और मेरा अपना खून मेरा भाई मुझ पर एतबार करता और मुझे गलत समझने की बजाय मेरा साथ देता, तो आज 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बच जाती, एक जरीना की और दूसरी मेरे अपने भाई की। आज मैं अपने घर में अपने बच्चों और शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। अब सास भी मुझे ताने नहीं देती
اسی وجہ سے میں ہر کام ان کے کہنے سے پہلے ہی کر دیتی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا دوسرا نام ہے۔ اگر یہ اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔